اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی مس ہو رہی ہے. سارا پڑھانے کا بندے کا. جی ناؤ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سینڈ لیٹر، یہ ایروز کے ذریعے آپ کو سمجھ آ رہا ہے ان تمام وہ ہی سینڈ لیٹر. اچھا یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ 7th ایئر میں آپ نے یہ آپ کو کن کے ہاتھ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز بھیجے، ان کے نام موجود ہیں. ٹھیک ہے، عمر بن امیہ تھے، ان کو آپ نے ایبیسینیا بھیجا. اچھا آپ کو یاد ہے مائگریشن ٹو ایبیسینیا میں نجس جو تھا، he got impressed and he allowed the Muslim they can live peacefully in Abyssinia. یہ سب کیا تھا بٹ he didn't embrace Islam. ٹھیک ہے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7th ایئر میں ان کو لیٹر بھیجا تو نجس نے یہاں اسلام قبول کیا 7th ایئر میں. ٹھیک ہے، اسی طرح بحرین کا جو چیف تھا اس نے ہی امبریز اسلام آن دا بہاف آف دیئر پیپل، یعنی کہ میں اور میرے تمام لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور وہاں پر مندر المندر جو تھے وہ مطلب وہاں کا چیف تھے. عبداللہ بن حذیفہ کو آپ نے خسرو پرویز کے پاس بھیجا مدائن. ٹھیک ہے، دہیا قلبی جن کو یاد ہے حضرت ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں تو حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے. بے انتہا بہت خوبصورت بھی تھے یہ. ان کو جیروسلم بھیجا آپ نے رومن امپائر کے بادشاہ ہیرکلس کے پاس. حاطب کو آپ نے الیگزینڈریا بھیجا یعنی کہ ایجپٹ کے گورنر یا بادشاہ جو بھی کہیں. ٹھیک ہے، عمان جو ہے عمان کی ڈائریکشن دیکھیں، عمان میں آپ نے ان کو بھیجا عمر بن الاس کو. حالانکہ عمر بن الاس 7th ایئر میں اسلام لے کر آئے تھے، آپ نے ان کو بھیجا. یمامہ آپ نے حضرت سلید تھے ان کو بھیجا آپ نے. اور شجاع بن وہب جو ہے ان کو ڈیمیسکس بھیجا آپ نے. ٹھیک ہے، تو ان سب کو آپ نے اس طرح سے جس طرح سامنے آپ کو 1 2 3 4 5 6 یہ نظر آ رہا ہے اس طریقے سے آپ نے ان کو بھیجا. انوائٹڈ دیم، بہت بڑی بات تھی، ڈائریکٹ آپ نے انوائٹ کیا ان کو. یہ سب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ 7th ایئر میں. لیکن اب سوائے نجاشی کے، نجاشی یہ ایبیسینیا اس نے اسلام قبول کیا، بحرین نے، مدائن میں تو بہت برا ہوا، خسرو پرویز نے بہت برا سلوک کیا. جیروسلم میں جو آپ نے ہیرکلس کے پاس اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا بٹ ہی گاٹ امپریس. الیگزینڈریا میں بھی اس نے مقیقس جو تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن محمد کو بہت گفٹ اور بہت سافٹ ریپلائی اس نے بھیجا، یعنی کہ اس نے بھی نہیں کیا. عمر بن الاس عمان گئے تھے، انہوں نے
जो था ओमान के चीफ ने इस्लाम कबूल किया, मोहम्मद के पास आया ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पीपल, ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। और जो जिनको आपने सुलैद को आपने भेजा था यमामा, तो यमामा में भी इस्लाम आ गया था, ठीक है, वो उसके चीफ ने भी कर लिया था। और शुजा को डेमास्कस भेजा था। तो यहाँ पर जो था ये भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो बस ये हुआ था सिवाय नजाशी के और बहरैन, ओमान, इन इलाकों के। बाकी कोई किसी ने में नो वन एम्ब्रेस इस्लाम। यमामा पे भी इस्लाम आ गया था, बाकी ये कि किसी ने इस्लाम नहीं किया, लेकिन उसने इतना ज्यादा एग्रेसिव बात भी नहीं की। बहरहाल ये 7th ईयर में मोहम्मद की एक बहुत बहुत बड़ी कोशिश थी, ठीक है। अम, अलीजे, अबीरा क्लास में है? मिस नहीं, मुझे नहीं लगता वो क्लास में है। नहीं नहीं, है अभी मिस। अभी अबीरा के नाम से कोई आ रहा है, मैं नहीं कर रही। उसको मैसेज कर दो कि अगर ये तुम ही हो तो मिस ऐड करेंगी, नहीं तो मिस ऐड नहीं करेंगी। ठीक है मिस, मैं कर रही हूँ मैसेज। हाँ, अब ये हो गया 7th ईयर में काम। दूसरा काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7th ईयर में जो था, अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आपने करवाई, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर नहीं थे कि ये जिस तरह आप पर बैटल ऑफ ट्रेंच में जिस तरह अलायंस करके आए थे ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो खैबर के ज्यूज जो थे, देवर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो वो ये कर रहे थे, ठीक है। दूसरी, ये 7th ईयर का ही वाकया है। और दूसरा काम वो क्या कर रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हरकतों से तंग आके 7th ईयर में आपने इनकी हरकतों से तंग आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इनके पास अपना एक मैसेंजर भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, स्क्रीन पे खैबर आ रहा है? जी, खैबर एक्सपीडिशन जो है स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं? नहीं मिस। अच्छा, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मालूम किया कि ये जो इतने ज्यादा ज्यूज और ये सब मिलके अलायंस ट्राइब आए थे, तो इसके पीछे तो आप तक ये खबर पहुंची कि ये जो अलायंस ट्राइब को जो करके आए थे, इनको असल में स्टार्ट इनिशिएटिव लेने वाले वो थे बनु नजीर वाले, जिनको मोहम्मद ने एग्जाइल कर दिया था फ्रॉम मदीना, ठीक है। एक तो ये बात हुई। दूसरा जो है, दूसरी एक तो ये हुई। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखते हुए कि ये ज्यूज जो हैं वो अपनी इससे बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास अपना एक मैसेंजर भेजा। उनका नाम था अब्दुल्ला बिन रवाहा, ठीक है। अब्दुल्ला बिन रवाहा को आपने भेजा और भेज के आपने कहा कि भाई जाइए और ये जो इनका जो चीफ है उसको लेकर आइए, कि ताकि मैं बैठ के बात करूं कि ये क्या प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम ना। तो बहरहाल आप अब्दुल्ला बिन रवाहा गए वहां पे, जाके मिले और उन्होंने कहा आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है ताकि बैठ के बात सके। हमें खबर मिल रही है कि स्टिल बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद भी आप लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं और स्टेट ऑफ मदीना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जब
वो उनको लेकर आ रहे थे, अब्दुल्ला बिन रवाहा, व्हेन दे वर ऑन देयर वे, लेकर आ रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, ठीक है। वो गलत जबान इस्तेमाल कर रहे थे। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, बहुत गलत जबान इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा उनके दरमियान लड़ाई हो गई, और अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथों वो जो चीफ था, चीफ ऑफ खैबर, वो मारा गया, ठीक है। चीफ जो था वो मारा गया। अच्छा, वो जो मारा गया, तो ये आ गए ज्यूज जो थे, दे गॉट एंग्री, बहुत ही अग्रेसिव हो गए कि मुसलमानों की इतनी जरूरत और इस तरह से। तो ज्यूज जो थे, इन्होंने एग्रेसिव हो गए, एंड दे स्टार्टेड प्रिपरेशन टू अटैक मदीना, ठीक है। ज्यूज ने कि हमारे उनको मार दिया है, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची कि ज्यूज जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कहा, आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मदीना तक कोई भी आए और मदीना को नुकसान पहुंचाए। आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है हम खैबर जाएंगे, आपने अनाउंस कर दिया। आपने कहा वो नहीं, हम लोग पहले जाएंगे खैबर के। आपने जब आपने जैसे ही अनाउंसमेंट की, तो मुसलमानों के साथ साथ जो वहां पर कभी ज्यूज थे और इस्लाम कबूल कर चुके थे, दे केम टू मोहम्मद, उन्होंने कहा मोहम्मद हम भी खैबर, हम भी जाना चाहते हैं आपके साथ खैबर। और मोहम्मद को पता था ये जो ज्यूज मेरे पास आ रहे हैं कि हमें भी जाना है, इनकी इंटेंशन जो है वो प्योर नहीं है। ये वहां जाके ये वहां जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और अपने ज्यूज को जो है सपोर्ट करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस करा दिया, आपने कहा कि आई विल टुक ऑल दोज मुस्लिम्स हु टुक बैत एट बैत रिजवान, जिन मुसलमानों ने मेरे हाथ पर बैते बैते रिजवान ली थी। मैं समझ नहीं आ रहा है, ये जो भी बच्चा है, बच्ची है, आई डोंट नो, अल्लाह उसको नेक हिदायत दे, कि ये मुस्तकिल नंबर नाम बदल बदल के वो मौजूद आने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। अब इन्होंने अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है वो इनके साथ ये डिस्प्यूट हो गया। तो मोहम्मद ने कहा बैते रिजवान, याद है ना, बैते रिजवान 1400 मुसलमानों ने ली थी, और 1400 मुसलमान जो थे ये वो मुसलमान थे 1400 जो के जाहिर है मुसलमान थे, एंड दे वांट टू परफॉर्म उम्रा। तो आपने इसलिए ताकि ये ज्यूस को मोहम्मद ने कटा दिया। आपको नहीं समझ आ रहा था इनको कैसे मैं कटाऊं, आपने ऐसे कटा दिया। आपने कहा नहीं, सिर्फ वो लोग मेरे साथ जाएंगे जो के बैते रिजवान जो है, बैते रिजवान में उन्होंने ओथ ली थी। 1400 मुसलमान करके, अब चूंकि लेकिन उस वक्त तो आप उम्रा करने जा रहे थे, तो 1400 मुसलमान, लेकिन जाहिर है अब आप जंग के लिए जा रहे हैं, तो आपने 200 कैवलरी, कैवलरी समझते, घुड़सवार फौज, फौज आपने 200 कैवलरी ली, और 1400 वही मुसलमान जो आपके साथ गए थे उम्रा अदा करने, और बैते रिजवान हुई, जाहिर है हजरत उस्मान की रिमर हो गई। आपने कहा तो ऑल टुगेदर 1600 मुस्लिम जो थे वो खामोशी से, बगैर चीज को इन्फॉर्म किए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लेके खैबर तक पहुंचे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज दिखा दूं, हाँ, ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर आपका ये मक्का है, ठीक है, और ये मक्का है, इसके साथ साथ आप ये देखिए ये खैबर है, और ये मदीना है। जो मैं सर्कल कर रही हूँ ना, इसको गौर से देखते जाएं। ये मदीना है, मक्का है, ये मदीना है, ये खैबर है। यानी कि मदीना से जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये खैबर आता है, ये खैबर है। अच्छा, ये खैबर जो है
یہ فرٹائل ہے، یہ فرٹائل ہے، اور جو یہ جیو علاقہ ہے، اور یہاں پر بنو نذیر والوں کو جو آپ نے نکالا تھا، بنو نذیر والے وہ بھی یہاں جا کے سیٹل ہو گئے، اور مطلب اور جیوز کا علاقہ ہے، یہاں پہ جیوز ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے بغیر آپ سب کو لے کے پہنچ گئے۔ اچھا، اب تھوڑا سا خیبر کی لوکیشن مزید، خیبر کا مطلب ہوتا ہے فورٹیفائڈ، یعنی کہ وہ علاقہ، وہ جگہ جو کہ قلعے ہی قلعے ہیں، فورٹی فورڈ ہے اور بہت مضبوط ہے، اندر سے بالکل پروٹیکٹڈ ہے، یعنی اتنا آسان نہیں ہے، بڑے بڑے قلعے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ مس ابھی PDF ہٹائیے گا نہیں، مجھے لکھنا ہے بس۔ اوکے، اچھا، خیبر 70 مائلس مدینہ کے، ابھی میں نے آپ کو پکچر دکھا دیا، اراؤنڈ 70 مائلس ہے یہ، اور اس میں تقریباً 20 فورٹریسز اور 20 کے قریب قلعے تھے بڑے بڑے، جس میں 8 جو تھے نا وہ بہت اسٹرانگ اور مضبوط تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر پام گروو سے، فارم سے، یہاں پہ بہت زیادہ یہ جو 8 تھے، یہ بہت ہی بہترین قسم کے تھے، بہت مضبوط تھے، بہت اسٹرانگ تھے، اور ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم جو تھا اس کا نام تھا القموس، جو کہ خیبر، ہارٹ آف خیبر ہے، دا سیٹ آف کنانا، دا سیٹ آف دا چیف، اور کنانا، یہ جو کنانا ہے یہ یہاں کے مین چیف تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی شادی جب محمد پہنچے تھے، خیبر پہنچے تھے، ان کی شادی جو ہے حضرت صفیہ سے اسی دن ان کی شادی ہوئی تھی، حضرت صفیہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، جو محمد کی بعد میں وائف بنی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ظاہر ہے، پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیو علاقہ ہے یہ، اور جوئش سیٹلڈائٹ، اور یہاں پر خالی خیبر میں نہیں، فدق میں تھے جیوز، ایلا میں تھے، تو یہ قریب قریب علاقے تھے، یہ سارے کے سارے یہاں پہ تھے، یعنی کہ ایک بہت مضبوط قسم کا جہاں کلسٹر آف فورٹریسز ہے یہ یہاں پہ موجود تھے۔ اچھا، 7 AH میں ہولی پروفیٹ ڈکلیئرڈ ہز انٹینشن ٹو ڈیلنگ ود دا اویسس۔ آپ نے کہا بس بہت ہو گیا، ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد آپ بڑے ریلیکس تھے کہ اب ہم 10 سال تو ان سے لڑیں گے نہیں، 10 سال تک تو اب ذرا ان جیوز کو لیسن کریں، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بھیجا عبداللہ بن رواحہ کو، لیکن یہ ہو گیا، مرڈر ہو گیا، اور یہ سب جو تھے تیاری کرنے لگے، آپ جو تھے ان سب کو۔ اچھا، یہ خیبر جو تھا نا پاپولیٹڈ موسٹلی بائی ویلدی، اس کے اندر سب زیادہ تر بہت امیر قسم کے جیوز کلین تھے، اور یہ اسلام سے ہاسٹائل ٹو اسلام کا مطلب اسلام کے خلاف تھے، ٹھیک ہے، ان کو بہت زیادہ اسلام سے شدید نفرت تھی۔ اچھا، یہ جو لبید کا لکھا ہے نا یہ میں بعد میں سمجھاؤں گی، لبید یہ یہاں پر ایک بہت بڑا جادوگر ہے، ٹھیک ہے، جو بعد میں محمد پر بتاؤں گی کہ یہ جادو بھی کرے گا۔ اچھا، یہ سپوز کیا یہ اگر خیبر کا علاقہ ہے، خیبر ہے یہ، تو یہ اسی کے قریب جو ہے غطفان، غطفان، آمنہ قدوس کا کلاس میں ہے؟ نہیں مس۔ صرف ایک ہی آمنے وہ میں ہوں، باقی سارے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اچھا، اچھا، اب یہاں پہ یہ بنو غطفان کا نام آپ کلاس میں نہیں ہے آمنہ؟ بیٹا میسج کریں نا، آپ کو پتا ہے نا کہ کلاس میں کوئی انٹر ہو رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ مجھے میسج کریں کہ مس میں ہوں، یہ آپ مجھے ایڈ کر لیں، وہ نام بدل بدل کے مستقل کوئی آ رہا ہے۔
अच्छा, यहाँ पे होली, ये बनु गताफाम है। ये बहुत मतलब, ये जो आए थे ना बैटल ऑफ ट्रेंच के अंदर, वो बनु गताफाम वाले भी थे। बनु गताफाम वाले भी थे, ठीक है। और इनके जाहिर है ज्यू, ये भी ज्यू थे, खैबर वाले भी ज्यू थे, और इन लोगों को दोनों को ही मुसलमानों से प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये इनके साथ थे। ऑल्सो रिमेन, ये हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रहा है, बनु गताफाम है। तो इसके लिए होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आपने, ये मैंने पिक्चर तो आपको दिखा दी। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी पकड़ी और ये लोग पहुंच। अच्छा, यहाँ पे खैबर की जो अपने फोर्ट्रेसेस है ना, इसकी वो देख लीजिए आप। 3 मेन सेटलमेंट थे, तीन तीन इलाके, जगहें थी। इस नाता, कतीबा और शाख, ये 3 बड़े बड़े फोर्ट्रेसेस थे। नाता जो है ना, सबसे पहले ये वाला नाता जो है, इसमें जो किले बने हुए थे, उनका नाम था हसन, नाम, ठीक है। हसने साद बिन मुआज, हसने कला अल जुबैर, ये थे, ठीक है। ये नाता में, नाता जो है, समझो एक इलाका है, उसमें ये छोटे छोटे, ये असल में फोर्ट्रेसेस हैं इसके। दूसरा जो है द टू फोर्ट्स इन शाह, ये जो शाख है, इसमें 2 फोर्ट्रेसेस हैं, हसने अभी, ये देखें, हिस्ने अभी एंड हिस्ने निजार, शाख में 2 हैं। और ये जो ये वाला है कतीबा, ये कतीबा के 3 कैसल, इसमें बड़े बड़े कैसल बने हुए हैं। हसने कमुस, जो कि बहुत स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग, वती और सलालम, ये है। यानी कि आप ये समझ लो, और समझने के लिए, नाता, कतिबा और शाख जो हैं, इनके अंदर ये बहुत बड़े एरियाज हैं, इसमें फोर्ट्रेसेस हैं। और मेन फोर्ट्रेसेस जो हैं, नाता में 3 है, कतिबा में भी 3 है, शाख जो है इसमें 2 है, पर बड़े स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, मजबूत, ठीक है। अब ये इनकी सिचुएशन है। मेन जो क्लस्टर ऑफ फोर्ट्रेसेस हैं, तो वो तो है, लेकिन जो मेन है वो ये है। होली प्रॉफिट ने, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनको जाके, कि सबसे ज्यादा नाम जो जीव का आ रहा था, उसका नाम था असीर बिन रजान। इनको भेजा था मोहम्मद ने, अब्दुल्ला बिन बाबा को लाए, इन दोनों में लड़ाई हुई और वो मारा गया। ज्यूज तो वैसे ही तैयार बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम इनसे लड़ेंगे। होली प्रॉफिट ने डिसाइड किया कि नहीं, ये कैसे लड़ेंगे, हम जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत, ज्यूज ऑफ खैबर को अब लेसन देना बहुत जरूरी है। और जब से आपको पता चला था कि बैटल ऑफ ट्रेंच के पीछे असल में खैबर के ज्यूज ही थे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि वो जो हिपोक्रेट्स से जो ज्यूस थे और इस्लाम ले आए थे, हिपोक्रेट्स, वो भी चाहते थे कि हम जाएं, लेकिन मोहम्मद को पता था इनके जाने का मकसद ये है, जो ज्यू थे और मुसलमान हो गए, इनका मकसद ये है कि ये जाके उनकी मदद करेंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम करेंगे। तो आपने अनाउंस कर दिया, देखो वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया, 1400 बैते रिजवान वाले, तो 1600 हो गए, और 200 कैवलरी मिला के ये 1600 हो गए, ठीक है। ये यहां से जाएंगे, आप लेके खैबर पहुंच गए बगैर किसी अनाउंसमेंट के। 3 दिन तक चलते रहे ये लोग, 3 दिन के बाद ये पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैंने आपको दिखाया ना खैबर और गताफाम। आपको पता था कि हमने अगर खैबर को सीज कर लिया, खैबर को, तो ये बनु गताफाम वाले भी इनकी मदद को आएंगे, ठीक है। तो आपके लिए आपने क्या किया इसके लिए, कि आपने, असल तो ये था कि
जब इनको खबर मिली ना खैबर वालों को कि मुसलमान भी तैयारी करें, जो असल कहानी है, ये बाद में ये कहानी चेंज हो गई। तो इन लोगों ने क्या किया था, मोहम्मद ने कहा कि ये जो है ना, इनका गताफाम वाले इनकी मदद जरूर करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इनमें अलायंस था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से लेके ये लोग पहुंच गए मॉर्निंग, और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ये लोग खैबर पहुंचे। खैबर जो पहुंचे, तो हाँ, ये पहले तो ये बता रही थी कि इनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन, यानी कि हम अगर खैबर में दाखिल होंगे तो ये गताफाम वाले इनको मदद करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपने चंद घोड़ों को, जो कैवलरी थी ना, 200 कैवलरी, आपने पहले तो ये किया, इनसे कहा कि तुम गताफाम में डायरेक्ट दाखिल होके अपने घोड़े दौड़ाओ, ठीक है, उसमें अपने घोड़े दौड़ाओ। इनको ये इंप्रेशन देने के लिए कि ये मुसलमान जो है वो हमला करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, इनको जब ये रियलाइज हुआ, तो ताकि क्यों कम्युनिकेशन, और आपने यहाँ पर जो इनकी एंट्रेंस थी, खैबर जो गताफाम की एंट्रेंस थी, यहाँ पर होली प्रॉफिट ने अपनी आर्मी यहाँ पर पोस्ट कर दी, इस जगह पे गताफाम पे। पहले उनको हैरेस किया, कि खौफजदा किया कि मुस्लिम आर्मी चक्कर काट रही है, और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो है मोहम्मद ने अपनी आर्मी को लगा दिया कि इनको गताफाम वालों को निकल के खैबर वालों की मदद ना कर सके। पहले तो आपने गताफाम को काट दिया एक तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फिर, अच्छा, ये लोग, इन लोगों को, खैबर वालों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुसलमान इतनी जल्दी आ जाए। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग थी, सब अपने खेतों में, जाहिर है फर्टाइल एरिया था, सब अपने खेतों में आराम से काम कर रहे थे, ये सब हो रहा था। एकदम उनको ना पता चला कि मुसलमान पहुंच गए हैं, तो ये लोग भागते हुए, अपने खेतों में काम कर रहे थे, सब के सब भागते हुए अपने अपने फोर्ट्रेसेस में दाखिल हो गए, और वहां दाखिल होके उन्होंने जो है अपने किले के दरवाजे बंद कर लिए, ठीक है। यानी कि द ज्यूज शट देमसेल्फ इन देयर 7 फोर्ट, ये जो तीन तीन के बड़े बड़े फोर्ट्स थे, सब उन मजबूत किलों में जाके उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। वहां से ऊपर रूफ से जाके ये ऊपर से हमला कर रहे थे मुसलमानों पे। ये सिलसिला चलता रहा, वो इन पर हमले करते रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहे कि अब आप लोग यहाँ से तीर चलाएं, आप भी कराएं। तो इस तरह से ये चलता रहा, 6 दिन गुजर गए, ठीक है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। एक उनका स्पाई जो था किसी तरह से मुसलमानों के हाथ लग गया, तो पकड़ लिया इन लोगों ने। तो उसने अपनी जान, उसने कहा अगर मैं जान की अमान पाऊं, अगर, तो मैं आपको बहुत सी वीक पॉइंट अपने ज्यूस के बता सकता हूँ, लेकिन मेरी जान जो है वो बख्श दें आप। और उसने उनको बहुत इंपॉर्टेंट वहां की इंफॉर्मेशन दी कि कैसे आप किलों पर इनको कमजोर कर सकते हैं, और कैसे किलों पर को फतह कर सकते हैं, ये उसने इनको बता दिया। तो जिसकी वजह से तकरीबन 6 किले तो बहुत आराम से मुसलमानों ने हमले कर करके उन किलों को बहुत आसानी से कर लिया। ये नहीं होता था कि बिल्कुल वो उन्होंने सरेंडर किया, छोटी छोटी बैटल इनके दरमियान हुई, लेकिन एक जो किला सबसे मजबूत था, कमोस, वो बेहतरीन था, ठीक है। वो कॉन्कर्ट करना एक मुश्किल काम हो गया था, नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज मुसलमान जाते थे, और जाने के बाद कोशिश करते थे, और रोज नाकाम होके कि पता ही नहीं हो रहा है, बाकी तो इजीली हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन, कई दिन गुजर गए थे, तो आपने कहा कि टुमारो आई विल गिव द स्टैंडर्ड। अच्छा, स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं वो फ्लैग को कहते हैं, जो कमांडर के पास होता है, ठीक है।
ये कमांडर के पास होता है। इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद ने कहा कल मैं जिसको फ्लैग दूंगा, आप में से जिसको दूंगा, उससे अल्लाह, उसका मैसेंजर बहुत मोहब्बत करता है और अल्लाह उसको कामयाबी देगा। ही इज नॉट वन हु टर्न बैक इन फाइट, और वो जो है वो हारेगा नहीं और कामयाब होके आएगा। अच्छा, सारे कंपेनियंस ने जब मोहम्मद की ये बात सुनी कि कल मतलब एक तो मैं कल उसको फ्लैग दूंगा जिसको के अल्लाह, उसका नबी मोहब्बत करता है, फिर तीसरी बात आप कह रहे हो और उसको कामयाबी होगी, कम उससे कॉन्कर्ट कर लेगा, ठीक है, और वो वापस मतलब कल वो वापस नहीं आएगा नाकाम। अब सारे कंपेनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मोहम्मद हमारा नाम ले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का नाम लिया, ठीक है। हजरत अली का नाम आपने लिया कि अली, मैं आपको अलम देता हूं और आप जाइए। अब सारे कंपेनियन, थोड़ी सी तो जेलिसी उस जमाने में भी होती थी, पता है आपको। तो कंपेनियन से कहा मोहम्मद आप अली को तो दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है इनके इनको आई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, आंखों में दुख रही है, तो आप जो है फिर किसी और को भेज दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बुलाया, हजरत अली को, और हजरत अली को ही अप्लाइड इज सलाइवा, सलाइवा यानी कि थूक, अपना सलाइवा अप्लाइड किया इन हिज आईज। तो आप यकीन करें उनका फौरी उनका इन्फेक्शन खत्म हो गया। और अली को आपने फ्लैग दिया, अपना स्टैंडर्ड दिया, देन प्रेड फॉर हिम एंड हिज कंपेनियन दैट अल्लाह शुड ग्रांट हिम विक्ट्री। आपने उनके लिए दुआ भी की। अब एक खतरनाक किस्म की फायर्स बैटल विच वॉज इन फेवर ऑफ अली, आप हजरत अली लड़े, बट मैनी ऑफ द जूइश मैन escape फ्रॉम अ बैक डोर टू द अदर फोर्ट्रेसेस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हजरत अली जो थे, अच्छा इसका जो है ये जो कमुस है ना, कमुस का जो चीफ है, जो बेहतरीन कमांडर है, उसका नाम है मरहब। ये वहां का गवर्नर भी समझ ले, एक तरह से बहुत बड़ा आदमी है, कमांडर है, बेइंतहा बहादुर। तो अब आपने हजरत अली ने, जाहिर है फॉल्ट फायर्सली, बहुत ब्रेव होके और लड़े। तो ये जो फौज थी ना खैबर वालों की, जब आप यहाँ तक पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, बैक डोर, उस किले का बैक डोर जो था ना, उससे दूसरे फोर्ट्रेसेस में घुस गए, ठीक है, दूसरे में घुस गए। वो जो था ये जो जहां घुसे थे उसका नाम जुबैर था, उस किले का। यहाँ पे हजरत अली ने आवाज लगाई मरहब को, लड़ाई हो रही थी, आपने कहा भाई मरहब तुम बाहर आओ और मुझसे लड़ो, ये मुस्तकिल ये जो हम लड़ रहे हैं इससे बेहतर है तुम बाहर आओ। कहते मरहब पूरा अपना कैवलरी ड्रेस पहन के सब तैयार होके मरहब वापस आ गया, तैयार होके, और बहुत आवाजें निकालता हुआ ना, खौफजदा किस्म की ये निकल के आया। ये इनके दरमियान इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट टाइप का हुआ, दोनों लड़े, और जो इतना ब्रेव था, जी उसको यकीन था कि ये मरब जाएगा और हजरत अली और मुसलमानों को मार भगाएगा, लेकिन हजरत अली ने विद इन नो टाइम ही किल्ड मरहब। अब जब आपने मरहब को मार दिया तो ये जो थे ना अपने, क्या नाम है, ज्यूज, दे लूज देयर हार्ट। उन्होंने कहा ये तो आप, ये तो बहुत मुश्किल हो गई है इनका। तो इस तरह से वन बाय वन सबको आपने कॉन्कर्ट किया, लेकिन वही जो रह गया था कमुस, जो आपने मरहब को कहते हैं इसको, इसका जो भाई था वो भी बड़ा बहुत बड़ा लड़ाका था, वो भी आया, तो उसको हजरत जुबैर जो थे अली के साथ थे, हजरत जुबैर ने उसको मारा। ये दोनों भाइयों को जब मार दिया मुसलमानों ने, तो बस इसके बाद इनके दे लूज देयर हार्ट, इनके अभी इन मुसलमान हमसे, हम जीत नहीं सकते इनसे, ठीक है। और उन्होंने समझे, क्योंकि सारे तो फोर्ट्रेसेस कॉन्कर्ड हो गए थे, एक कमुस रहता था, अपने कमुस को भी जो है वो
कॉन्कर्ड कर लिया। अच्छा, जो किनाना जो था, जो चीफ ऑफ खैबर था, मेन चीफ, इसकी जिसका मैंने बताया था हजरत सफिया से शादी हुई थी एक दिन पहले ही, वो फिर मोहम्मद, क्योंकि जाहिर है साहब तो हार गए थे ये, अब इनके पास कोई चारा, ये मोहम्मद के पास आए, इन्होंने मोहम्मद से माफी मांगी फॉर देयर लाइव्स, क्या मोहम्मद हमें माफ कर दें, हमारी जिंदगियों को बख्श दे, और चाहे हमसे सारी हमारी दौलत ले लें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, हाँ तुम्हारी एक कंडीशन है, एक कंडीशन है कि तुम हाफ ऑफ ईयर, मैं तुम लोग फार्मर्स हो, यहाँ तुम्हारी जमीनें हैं, मैंने तुम्हें ये फॉरगिव, मैंने तुम्हें माफ किया, ही फॉरगिव देम, माफ किया, यू कैन लिव पीसफुली इन योर एरिया, हम यहाँ पे सेटल होने नहीं आए, तुम्हारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम आए हैं, तो हमने तुम्हें माफ किया, तुम यहाँ रह सकते हो, ठीक है। और जो और तुम हमें हर साल जब तुम्हारी फसल तैयार होगी, तुम हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ लैंड, वो तुम हमें आधा दोगे, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हाफ ऑफ प्रोड्यूस, क्योंकि जाहिर है खैबर था ही फर्टाइल, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बागात थे, इनका काम ही पेशा ही ये था, आपने कहा आधी फसल हमें चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो, इन्होंने माफ कर दिया, हमें खैबर में रहने दे रहे हैं, और हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ लैंड अगर हमें देनी पड़ेगी तो वो एग्री कर गए। लेकिन मैं मोहम्मद ने कहा कि देखो, या तो तुम लोग इस कंडीशन पे एग्री कर जाओ कि तुम मुझे आधा शेयर दोगे, और अगर तुम नहीं करते इस बात पे, तो निकल जाओ, फिर निकल जाओ, तो खैबर से निकल जाओ, और कोई दौलत कोई चीज तुम लेके नहीं जाओगे। उन्होंने कहा ओके। अच्छा, काफी सारे लोग जो थे ज्यूस के, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम यहाँ पे रहने दिया, हमें माफ कर दिया, हमें रहने दिया, जिंदगी हमारी बख्श दी मोहम्मद ने, हमें जरूरत नहीं है, हम ठीक है, हम अपने फार्मिंग करेंगे अपनी, और जो भी फसल तैयार होगी स्टेट ऑफ मदीना को दे देंगे हम। लेकिन कुछ ऐसे हट धर्म थे, उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों दें, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं, यहाँ से खैबर से जा रहे हैं। मोहम्मद ने ऐलान किया था कि देखो एक बात बता रहा हूं, अगर तुम खैबर छोड़ के जाओगे तो अपनी सारी दौलत तुम यहीं छोड़ के जाओगे, कुछ नहीं लेके जा सकते। तो ये जो चीफ था ना किनाना, इसने लेकिन ये भी, इसने कहा कि नहीं, इसने अपनी सारी दौलत एक जगह पे ले जाके छुपा दी, ठीक है, इसने छुपा दी, और उसने कहा ठीक है, उसके कजन वगैरह इन लोगों ने छुपा दिया। अच्छा, मुसलमानों तक ये खबर पहुंच गई कि किनाना जो है उसने दौलत छुपा दी है, कि जब मुसलमान चले जाएंगे, हम आएंगे और आके ये अपना खजाना जो है दौलत का वो निकाल लेंगे। वहां मुसलमानों तक ये बात उनके स्पाई के जरिए पड़ गई। उन्होंने जो है जाके उस जगह की खुदाई करवाई, वहां दौलत थी। तो किनाना जो के और उसकी फैमिली, उसके कजन वगैरह जो यहाँ से निकल के जाने की तैयारी कर रहे थे, मोहम्मद ने उन्हें स्लेन करा दिया, ठीक है, कि बात नहीं मानी थी, और छुपाया था, और झूठ पे झूठ बोल रहे थे कि नहीं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं लेके जा रहे, और वो छुपा चुके थे, जमीन में गाड़ चुके थे अपना सारी दौलत को, ठीक है। और इसके साथ अब ये पूरा खैबर जो था मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया, कॉन्कर्ड कर लिया, सिवाय इस कंडीशन के। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के साथ अल्फिजा, फदक, तीमा, इन इलाकों को भी कैप्चर किया, ठीक है, और उनको जजिया कंडीशन पे उनको माफी भी दे दी। बस खैबर ये है, इसलिए ये खैबर 10 नंबर में नहीं आती, 5 नंबर में आती है, क्योंकि इसमें सच वो नहीं है, हजरत अली का काम है इसके अंदर, ये सब चीजें। लेकिन इसके अलावा इसमें थोड़ी सी डिटेल अदर देन दिस है। किनाना को आपने मार दिया, उसके कजन्स को मरवा दिया, और सारी दौलत जो थी वहां से निकाल ली गई।
मुस्लिम कॉन्कर्ड हो गए इसके अंदर, ये पहले ये देख ले फिर बताऊंगी। 93 ज्यूज, क्योंकि जाहिर है वो ऊपर से हमला करते थे मोहम्मद यहाँ से। अच्छा, इन लोगों के भाई के उस जमाने में ये जो तोपे और ये चीजें तो नहीं होती थी, लेकिन ये एक बिल्डोजर टाइप के होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, ये उनको हिट करते थे। तो इन मुसलमानों ने उसके जरिए तो इनके किले के दरवाजे तोड़े थे। तो इसके अंदर 93 ज्यूज जो थे वो मारे गए थे, और 15 मुसलमान भी शहीद हुए। तो और उन्होंने जजिया कंडीशन पे एग्री कर लिया, जब हार गए माफी मांग ली, मोहम्मद ने माफ कर दिया, जजिया कंडीशन पे हो गए, यानी कि वो हाफ ऑफ प्रोड्यूस ऑफ लैंड देंगे। ठीक है। और सारे ज्यूस ने जिन जो एग्री नहीं कर रहे थे वो उनको खैबर से निकाल दिया गया। अब बाकी सबको जो थे, जो एग्री थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आप प्रोड्यूस ऑफ लैंड देंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, जब कटिंग का टाइम आया, हार्वेस्टिंग का टाइम आया, तो आपने अब्दुल्ला बिन रवाहा को भेजा वहां पे कि भाई फसल अब कट रही है, अब आप जाइए और हाफ प्रोड्यूस ऑफ लैंड ले आइए। तो वो जो थे ना ज्यूस, जो अच्छे ज्यूस थे, उन्होंने अपना जितनी वो थी फसल तैयार हुई थी, वो सब एक जगह डंप कर दी। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी, बहुत थी, यहाँ डंप कर दी। और अब्दुल्ला बिन रवाहा से कहा कि ठीक है इसमें से आधा करें और ले जाएं आप, आधा हमारे लिए छोड़ दीजिए। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने आगे बढ़े, उन्होंने जितनी फसलें उन्होंने थे, अनाज जो कुछ था, वो सब उन्होंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। ठीक है, दो हिस्से कर दिए उस सब के। अब जब दो हिस्से कर दिए हजरत अब्दुल्ला, और दूर जाके खड़े हो गए और ज्यूस से कहा कोई भी एक हिस्सा तुम लोग ले लो। अगर वो आधा आधा करते और कहते चलो भाई मुसलमानों ये सामान ला दो ऊंटों पर, तो इससे क्या हो जाता कि इन्होंने बेईमानी की है और अच्छा वाला हिस्सा लेके आप दूर हट गए। आपने कहा मैंने दो हिस्से कर दिए, अब ज्यूस आपको एक हिस्सा आप ले लें, जो हिस्सा आप नहीं लेंगे वो हम मुसलमान ले लेंगे। इस बात का ज्यूस के दिल पे बड़ा असर हुआ कि ये बहुत फेयर लोग हैं। ठीक है, ये बहुत फेयर लोग हैं। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने उसको एग्री किया, और यहीं से खैबर के ज्यूज जो थे, मोस्टली ज्यूज जो थे, वो इस्लाम को कबूल कर लिया। अब इसका सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या हुआ, ये बी पार्ट में ज्यादातर आता है। अच्छा, मुसलमान जो थे वो अरेबिया से निकल के मतलब इसमें के मक्का मदीना से हटके अब खैबर की जानिब पहुंच गए, वहां कंट्रोल आ गया। ज्यूस की हुकूमत नहीं रही है, और ना अपनी हुकूम जमीनों पर उनका कंट्रोल, क्योंकि आधा तो उन्हें मुसलमानों को देना पड़ रहा है। लेकिन इसका एक फायदा क्या हुआ, दो उनका तो नुकसान हुआ, मुसलमानों को टोटल कंट्रोल मिल गया। और ये जो ज्यूस की कॉन्स्पायरेसी थी अगेंस्ट द मुस्लिम और इस्लाम, वो खत्म हो गई, उससे निजात मिल गई। एंड दे कुड बी वॉच, इकोनॉमिकली इट वाज बेनिफिशियल, और मुसलमानों के लिए इकोनॉमिकली ये बहुत फायदेमंद मतलब बगैर किसी मेहनत के हाफ ऑफ प्रोड्यूस ऑफ लैंड ऑफ खैबर वो उनको मिल रही थी। ठीक है, फिर वो इम्प्रेस हो गए इन लोगों की, यार बहुत है, जिस तरह इन्होंने मुसलमानों को तंग किया, और मोहम्मद ने उनको माफी दे दी। ठीक है, ये वो वाली चीज थी जिनसे के ये लोग बहुत इम्प्रेस हुए। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा का आना और हाफ हाफ करके अलहदा हो जाना कि कोई एक पार्ट आप ले लो, जो बचेगा वो हम लेंगे। ये वो चीजें थी कि बहुत सारे ज्यूस जो थे इस्लाम में दाखिल हो गए। अच्छा, इसके अंदर हमें लेसन और मॉडल क्या है, ये इसलिए दिखाती हूँ ताकि तुम लोगों को ये हो जाए कि हाँ जी, ये बी पार्ट के पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, जब ये जीत गए थे तो खुशी में इन्होंने खाना पकाया, बहुत सारा खाना पकाया। खाना पका के मोहम्मद को इनवाइट किया कि मोहम्मद आ जाए, और जीत की खुशी में हमने बहुत बेहतरीन बहुत खाना बनाया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए,
आपने हंस के पूछा कि अरे भाई आज क्या पका लिया? तो उन्होंने कहा हमने डोंकी का जो गोश्त है वो डोंकी काट के उनका गोश्त बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताया, वहां डिक्लेयर किया कि नहीं, डोंकी तो हराम है, मैं तो नहीं खाऊंगा और ना आप लोग खाएंगे। तो मुसलमानों ने जो इतनी मेहनत से पकाया था सारा वहीं पे डंप कर दिया, फेंक दिया। अच्छा, इसके बाद देखो, मुसलमान ज्यूस का आप कहाँ से कनेक्ट करोगे? तीन ज्यू ट्राइब हैं अरेबिया में जो मदीना में रहते हैं, बनु कैनुका, बनु नजीर, बनु कुरैजा। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि पहले कैनुका को निकाला, क्यों निकाला, फिर नजीर को निकाला, क्यों निकाला, सब बता चुकी हूँ। कुरैजा को भी निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम साद बिन मुआज ने तो उनको खत्म ही करवा दिया। ठीक है, तो ये जो एक सेकेंड में जो बैटरी चार्जर लगा दूं, तो ये बनु कुरैजा का, तो जो जिस तरह ज्यूस ने बिजनेस में निकाला था ना मदीने से, तो ये जब से कॉन्स्पायरेसीज कर रहे थे अगेंस्ट इस्लाम और मुस्लिम, तो अब मुसलमानों को इससे निजात मिल गई। खैबर फतह हो गया था, अच्छे रिलेशन हो गए थे अब ज्यूस के साथ, ये हो गए। ठीक है, और खैबर के बाद मुसलमान जो थे एक बहुत ही पावरफुल फोर्स अरेबिया में डिक्लेयर हो चुके थे, और मोहम्मद ने इजाजत दे दी थी कि तुम आराम से अपने। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जब आप खैबर में थे। अच्छा, यहाँ पर एक ज्यू फैमिली है खैबर में, जब ये लोग जीत गए थे, वाइफ ऑफ सलमान बिन मिशकाम, ये ज्यू है। इसकी वाइफ जो थी वो आती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें बड़ी खुशी हुई, आप जीत गए और यूं है और मैं आपकी दावत करना चाहती हूँ। तो मोहम्मद ने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरी दावत कर रही है मैं आ जाऊंगा। तो उसने बकायदा कंपेनियन से पूछा कि भाई ये बताइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे का कौन सा हिस्सा पसंद है? तो कंपेनियन से उनको बताया कि वो जो शोल्डर का होता है, दस्ती कहलाता है वो। ठीक है, उन्होंने कहा कि उनको बहुत सॉफ्ट गोश्त होता है, इनको दस्ती का गोश्त बहुत पसंद है। तो उसने कहा ओके, चली गई। ठीक है, फिर उसने मील पर तैयारी इनवाइट किया था मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो दावत खाने जा रहे थे, तो जब निकल के जा रहे थे, क्योंकि सिर्फ मोहम्मद को इनवाइट किया था, तो एक कंपेनियन रास्ते में मिले, उनका बशीर बिन बर्रा नाम था। आपने इनको कहा कि चलो भाई बशीर, मैं अकेला जाऊंगा, उन्होंने इनवाइट किया जियो फैमिली में, तुम भी मेरे साथ चलो। वो बेचारे इनके साथ चले गए मोहम्मद के साथ। ठीक है, जब चले गए उसने खाना रखा। ठीक है, और जो मोहम्मद के आगे दस्ती रखी गई ना, रखी गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गोश्त को काटा और मुंह में ले लिया। वो जो कंपेनियन थे उन्होंने भी मुंह में ले लिया, खाना शुरू किया। अभी मोहम्मद ने उसको च्यू करना शुरू किया था कि आपको कुछ गलत फीलिंग आई ना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही स्पेट इट आउट, सब थूक दिया आपने, और आवाज लगाई कि दिस इज पॉइजन, ये तो जहर है। अच्छा, जो दूसरे कंपेनियन थे वो तो नबी तो नहीं थे, ये तो अल्लाह के नबी थे, इनको पता चल गया। उन्होंने उसको चबा लिया, तो खा भी लिया था, मतलब पेट में चला गया था वो जहर उनके। तो मोहम्मद ने फातिमा को बुलवाया, फातिमा नाम था उन खातून का, ठीक है, जो सलाम बिन मिशकान की वाइफ थी। उनको बुलवाया और उनको बुलाया और कहने लगे कि ये तुमने मुझे दावत पे बुलाया और उसमें जहर डाल दिया? कहने लगी हाँ मैंने डाला, मैं ये चेक कर रही थी कि तुम वाकई में अल्लाह के नबी हो या तुम सिर्फ एक कॉन्करर हो जो जगह जगह जाके हमले कर रहे हैं और फतह कर रहे हैं।
تو मोहम्मद ने कहा, फिर कहने लगी मुझे यकीन हो गया आप अल्लाह के नबी। मोहम्मद ने उसको माफ कर दिया, कहने लगे जाओ तुम। और आप उठ के बस अपने इन कंपेनियन को लेके चले गए। अब ये आप आगे ही बढ़े थे तो बशीर जो थे इनकी हालत खराब होने लगी, बहुत बुरी हालत हो गई क्योंकि जहर इनके पेट में चला गया था और इनकी हालत खराब हुई और थोड़े टाइम के बाद इनकी डेथ हो गई। मोहम्मद ने फिर फातिमा को बुलाया, कहने लगे देखो तुमने मेरे साथ किया, जहर वाला तुमने दिया, तुमने कहा मैं चेक कर रही थी, मैंने तुमको माफ कर दिया, मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे अल्लाह ने इन्फॉर्म किया और मैंने मैंने वो थूक दिया। लेकिन ये बशर जो हैं तुम्हारी वजह से जिनकी डेथ हुई है और खून का बदला खून है, तो उस खातून को एग्जीक्यूट करा दिया गया। ठीक है, उसकी जाहिर है उसकी वजह से ये आदमी जो था उनकी हो गई। और दूसरी बात ये कि जो केनाना मैंने आपको बताया ना, किनाना जो चीफ था जिसको स्लेन कर दिया गया था उसके कजान वगैरह के साथ, क्योंकि दौलत उसने छुपा के चला गया था, तो उसकी शादी हजरत सफिया से हुई हुई थी। और सफिया जो थी एज कैप्टिव आई आपके पास, क्योंकि जाहिर है इनकी फैमिली मान ही नहीं रही थी इस बात को। ये सफिया कैप्टिव आई, आपने जितने कैप्टिव आए थे सब मुसलमानों में बांट दिए, आपने एक कंपेनियन को हजरत सफिया को भी दे दिया। जब वो कहा भी उनको लेके आगे चले गए तो उन्होंने कहा कि होली प्रॉफिट आपको पता है ये खातून जो है ये कौन थी? उन्होंने कहा नहीं। कहने लगे ये हई बिन अख्तर जो के मैं यहाँ लिख रही हूँ, बनु नजीर का चीफ जो था ये उसकी बेटी है और किनाना की वाइफ है, जिसको आपने अभी एग्जीक्यूट करवाया है, स्लेन करवाया है, किनाना की वाइफ है और हाय बिन अख्तर की बेटी है, चीफ की बेटी है और चीफ की बीवी है ये। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कंपेनियन को बुलाया और कहा कि देखो मुझे नहीं पता था ये सफिया जो है वो इतनी मोतबर है और ये हाय बिन अख्तर की बेटी है, तो तुम्हें मैं दूसरा कोई वो देता हूँ स्लेव, तुम इसको इनको छोड़ दो। हजरत सफिया बहुत खुश हुई ये देख के कि मुझे मेरे बाप ने तो इनके साथ बहुत गलत किया, मेरे हस्बैंड ने किया, और ये कैसे हैं कि इन्होंने मुझे इतना रिगार्ड दिया कि मुझे एज कैप्टिव में आई और आपने उनसे मुझे वापस ले लिया। बहुत खुश हुई और आपने कहा अल्लाह के नबी मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मैं इस दीन में दाखिल होना चाहती हूँ। अच्छा, खैबर में ही इन लोगों का निकाह हो गया सफिया का। अब जब निकाह हो गया तो हजरत सफिया को देखा, बहुत खूबसूरत थी। आपने जब देखा तो हजरत सफिया के चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा निशान पड़ा हुआ था। आपने कहा आप इंतहाई खूबसूरत खातून है, आपके ये निशान क्यों पड़ा है? तो कहने लगी कि जिस दिन मेरी तो शादी उसी दिन हुई थी जिस दिन के आप लोग यहाँ पे हमला करने आए। तो जब मेरी शादी हुई तो रात में मेरे हस्बैंड जो थे वो मुसलमानों आप लोगों के लिए वो बोल रहे थे कि मुसलमान यूं यूं, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा मेरी आपसे शादी हुई, लेकिन पता नहीं मैंने एक ख्वाब देखा है कि उस ख्वाब में मैंने देखा कि मदीने से एक चांद निकला है और वो चांद आके मेरी गोद में गिर गया है। तो किनारा जो था जबकि उसकी शादी उसी दिन हुई थी, उसको बहुत गुस्सा आया कि मदीने का चांद था, उसको समझ आ गया कि मोहम्मद का जिक्र है। इतना गुस्सा आया, उसी दिन शादी हुई थी, उसने इतना बहुत ताकतवर आदमी था, उसने एक थप्पड़ इतना जोरदार मारा कि आपके गाल के ऊपर उसका निशान बन गए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपने मुझे ऑफर दी, मैंने फौरी कबूल कर ली कि मेरा अल्लाह मुझे इन्फॉर्म कर चुका था कि मदीने में एक चांद है, वो चांद आके मेरी गोद में गिर गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के, क्योंकि जाहिर है ज्यू थी और ज्यू तो अहले किताब भी है, तो ये दो वाकयात, एक तो ये हो गया ज्यू वाला, एक हजरत सफिया का, और एक बहुत बड़ा वाकया यहाँ पे होगा। वो क्या है? वो ये है कि चूज जो जेलिस हो गए थे ना,
انہوں نے کہا ان کے پاس بہت مشہور ایک جادوگر تھا، اس کا نام تھا لبید، ٹھیک ہے، لبید نام تھا اس کا. وہ لبید جو تھا، اس کو جیوز نے ہائر کیا لبید کو، اور کہا کہ محمد پر جو ہے محمد پر میجک کرو، ٹھیک ہے، میجک کرو، کیونکہ جس تیزی سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے، اور فتح کر لیا خیبر، فتح کر لیا، یہ سب. لبید نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چاہیے. تو ایک غریب ایک جیو بچہ جو تھا نا، وہ محمد کو کسٹڈی میں دیا گیا کہ بھئی یہ آپ کے کام وام کرے گا، اور اس نے لے جا کے محمد کے کنگے میں سے بال نکالے اور لے جا کے لبید کو دے دیے. لبید نے کیا کیا، اور یہ لوگ مدینے آ گئے واپس. مدینے آ کے آپ شدید بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ کوئی آپ کا علاج نہیں ہو پا رہا، کچھ نہیں ہو پا رہا. اب وہ ہو گئے بیمار. تو ایک دن جب آپ کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ جو ہے آپ یہ تک بھول جاتے تھے کہ مجھے جو ہے نا، میں نے نماز کتنی رکعت پڑھ لی، آج مجھے کس وائف کے پاس جانا ہے، آج کس کا، آپ یہ بھی بھول جاتے. آپ کی بھولنے کے ساتھ ساتھ آپ بیمار بہت ہو گئے. تو ایک دن آپ بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو آپ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کو لگا کہ آپ کے سر کی طرف جبرائیل اور پاؤں کی طرف میکائیل کھڑے ہوئے، اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اب بات کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو محمد کے اوپر میجک ہو گیا ہے، اور یہ لبید نے کرایا ہے محمد کے بالوں پہ، ان پہ، اور اس نے کہا اچھا، اور ان بالوں کو ایک ڈرائی ویل ہے، اس کا نام انہوں نے لیا. ڈرائی ویل میں نیچے پام لیف کے اندر لپیٹ کے پتھر کے نیچے دبا دیا گیا. اس لیے محمد بیمار ہے. محمد کی آنکھ جب کھلی، آپ نے حضرت علی، عمار بن یاسر، ان دو تین کمپینین کو بلایا کہ فلاں کنواں جو ڈرائی ہے اس میں جائیے، وہاں ایک پام لیف کے اندر جو ہے پتھر سے دبا ہوا ہے، اس پام لیف کو نکالیے. وہ نکال کے لے آئے تو اس میں محمد کے بالوں کی پوری ایک لٹ تھی، بہت سارے بال تھے، اور ان بالوں میں نوٹ لگی ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل اپیئر ہوئے، اور انہوں نے کہا محمد قل اعوذ برب الناس پڑھیے. حالانکہ یہ مکہ میں ریویلڈ ہو چکی تھی. آپ نے قل اعوذ برب الناس جیسے پڑھا، ناس ایک نوٹ کھل گئی، ملک الناس نوٹ کھل گئی، الہی الناس نوٹ کھل گئی، ایک ایک کر کے ساری نوٹ کھل گئی. جب ناس ختم ہوئی تو جبرائیل نے کہا محمد قل اعوذ برب فلق پڑھیے. آپ نے سورہ فلق پڑھی. آپ ایک ایک ورڈز پڑھتے جا رہے تھے، نوٹ کھلتی جا رہی تھی، کھلتی جا رہی تھی. جیسے ہی آخری نوٹ کھلی ہے، آپ کو لگا آپ بالکل صحیح ہو گئے. تو آپ پر میجک بھی ہوا تھا. اور خیبر کے ہی جیوز جو تھے، انہوں نے اصل میں سب نے مل کے ہی کرائے تھے، سب شامل تھے، لیکن لبید سے کروایا تھا. اور تو ایک آپ کو زہر دیا گیا وہاں پہ، ایک وہاں وہیں پہ نہیں ہوا تھا، یہ تو آپ مدینہ آ کے آپ کی حالت خراب ہوئی تھی. یہ ہو گیا، یہ ہو گئی آپ کی کہانی ختم. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ خیبر، یہ چھوٹی سی مارکنگ اسکیم ہے کہ آپ دیکھو 628 یعنی کہ 7th year of ہجرہ میں خیبر ہوا. Jews who had broken their agreement with the Muslim army 1400 caught the city surprise، یعنی اچانک یہ پہنچ گئے، جبکہ 200 کا ذکر انہوں نے نہیں کیا جو خیبر. علی was given the banner to carry the Muslim، ٹھیک ہے. The Muslim attacked the first fort of Nain، سب سے پہلے انہوں نے نائن پر حملہ کیا. There were numerous strong، جو میں نے اتنے سارے نام بتائے ان کے نام ڈالنے ہیں آپ نے. پھر محمد نے جب دیکھا کہ یہ کانکر نہیں ہو پا رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دیا. اچھا ہاں، ایک چیز اس میں رہ گئی، جب علی نے قمص کو کانکرڈ کیا تو ظاہر ہے باقی لوگ بھی لڑنے آئے، مرحب، اس کا بھائی تو مارا گیا.
تو جو قاموس کا جو گیٹ تھا انٹرنس کا بہت اسٹرانگ اور ہیوی تھا، اور حضرت علی نے سنگل ہینڈیڈ اس اس ڈور کو ایز اے شیلڈ استعمال کیا، اور اس کو ایک ہاتھ سے اس کو موو کرتے رہے، جو کہ ایٹ اے ٹائم کئی انسان پکڑ کے اس دروازے کو کھولتے اور بند کرتے تھے۔ علی اتنے اسٹرانگ تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اس ڈور کو ہٹا کیا۔ دا جیوس لیڈر واز کلڈ، مرہب جو تھا وہ مارا گیا۔ اور آخری میں جیوز نے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمیں یہاں رہنے دیا جائے۔ ان ریٹرن محمد نے کہا ہاف پروڈیوس آف لینڈ دو گے تم، وہ آپ نے ایگری کی۔ دا بیٹل اسٹریٹن دا مسلم اینڈ دا پروفٹ لیڈرشپ، اب محمد کی لیڈرشپ کو بھی سب مان گئے تھے، اور مسلمان جو تھے اس سے کہ ہم نے جیوز پہ بھی قابو پا لیا، ان کے لیے بہت کامیابی ہوئی۔ یہ چھوٹی سی بیٹل ہے، کوئی بڑے نہیں ہے۔ آپ کو فورٹس کے نام یاد رکھنے، حضرت صفیہ کا چھوٹا سا واقعہ، اور زہر والا واقعہ، اور ڈونکی والا جو بتائے، چھوٹے چھوٹے یہ ملا کے تو تھوڑی سی اس میں ڈیٹیلز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا بیٹل آف خیبر ختم ہو گیا۔ تو ہم نے نہیں، یہ تو خندق نہیں، یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہماری خیبر ختم ہوئی۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اب یہ سمجھ لیں یہ کوشچن کیسے آتا ہے، آیا ہوا ہے، میری بات سن لیں کیسے آیا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک پاس پیپر کا ایک کوشچن ہے، ہولی پروفٹ ریلیشن ود دا جیوز، آپ بتاؤ گے جیوز کے ساتھ جب آپ مدینہ آئے 3 جیو ٹرائبس تھے، ٹھیک ہے، تینوں کے نام لکھو گے، تینوں کو 1 بائی 1 ہولی پروفٹ نے ایگزائل کیا۔ یہ ایگزائل دین جس میں کہ بنو نذیر خیبر جا کے سیٹل ہو گئے، اور انہوں نے بیٹل آف ٹرینچ میں انیشیٹو لیا، جس کی وجہ سے جب محمد کو خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ اب قریش سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو لیسن دینا چاہیے، تو آپ نے عبداللہ بن رواح کو بھیجا، جس کی وجہ سے یہ جنگ۔ پھر آپ خیبر کو بتائیں گے، اگر کوئسچن ایسا ہے تو پھر آپ بتاؤ گے پوری خیبر بتائیں گے، اگر پوچھا جا رہا ہے۔ اگر خالی یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ اب جتنی بیٹل آپ کریں گے نا، وہ 10 نمبر میں 2 بیٹل کرنی ہوئی، جو مکنز کے ساتھ ہے نا وہ 10 نمبر میں آتی ہے ایک بیٹل، تو بھی آئی ہیں وہ، لیکن ابھی کافی سالوں سے یہی چل رہا ہے۔ مکنز والی بڑی بیٹلز ہیں وہ 10 نمبر میں، یہ خیبر ہو گئی۔ اب میں آپ کو کل حنین کراؤں گی، یہ ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہے، تبوک چھوٹی سی ہے، تو یہ ساری بیٹل جو آپ کو رہ گئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی آپ کی کہانی ختم، صحیح ہے۔ تو اب میں نے کل 3 بجے کا ٹائم دیا ہے، میں نے کوئسچن بھی ڈال دیے تھے، جس کا جو بھی ٹیسٹ رہ گیا ہے کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو پیپر چیک ہو کے مل جائیں گے۔ 3 بجے پہنچ جانا ہے، آپ ٹیسٹ بھی دیں گے، اور میں آپ کو بیٹل آف حنین بھی کرا دوں گی۔ پھر ہماری صرف وہ موتا اور وہ رہ جائے گی نا، بیٹل آف موتا اور تبو، وہ کر کے ہم نے بس ختم کر دینی ہے اس ہفتے میں یہ مدنی لائف آف محمد۔ جب یہ ہو جائے گی پھر ہم کیلف پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اوکے۔ کوئی کوئسچن ہے تو بتا دیجئے، ہیلو، اینی کوئسچن؟ بیٹا یس نو بھی بندہ بول دیتا ہے، نو مس اوکے، ٹھیک ہے، 3 بجے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ مس اللہ حافظ۔